Okay, so welcome back. This is our lecture 10 of shares and debentures, CMA Intermediate June 2022 attempt. ठीक है, ये shares and debentures का हमारा lecture 10 है. Okay, so now we will continue with. There's one more problem which I said, which will be a lengthy problem. I will read that problem for you at the end of the session today. ठीक है, last 10 minutes में या last 7-8 minutes में we'll just go and read that problem. ठीक है, तो आपको what you will have to do is go home and just try to understand the problem and do it in your way. Right or wrong is fine. Just do it so you will be inside that problem. And tomorrow we'll do that problem. So once we do that problem, it will cover all facets of issue of shares. Okay. Right. So next is we'll talk about prohibition of issue of shares at discount. Okay. So this we already know that company now cannot issue shares at a discount under Companies Act 2013. Okay. This is as per section 53. So issue of shares at discounted price is void now, has no legal effect. Okay. And if this is contravened, so if a company does issue shares at a discount, okay, then there'll be fine for the company between 1 lakh to 5 lakh rupees. Okay, so basically fine will not be less than 1 lakh, can extend up to 5 lakh rupees. Okay, and for officer, there are always two levels for your penalties. ठीक है, एक होता है आपका company level, दूसरा is your officer level. This is your company level. Then officer in default, there is the director and whoever is in charge of that activity. For him, there can be imprisonment up to 6 months. Okay, or fine is same as this. Fine, along with that, he can get imprisonment, both. Okay. So now at this stage, I will quickly revise some of the earlier penalties that we have studied. Okay, मैं आपको just quickly बता देता हूँ. Some penalties which we had studied already, correct? One is with authorized capital, always show subscribed and paid up capital, right? That section one. That was the section, and for that, okay, the penalty was company level was 110,000 rupees. Officer in default 5,000 rupees. Okay, this was one we had seen. Or before that, what we had seen is abridged prospectus. Okay, don't attach in two cases, remember. And when do you have to attach whole copy of prospectus? These two things. Here only company level penalty is there for 50,000. Okay, this is what we have already studied. I am just showing all penalties together to you. Then minimum subscription 90%. Okay, not met. Then company had to do what? Refund application money within 15 days. Correct? That is after the end of those 30 days, right? So otherwise penalty was how much? Here penalty was now repay with 15% interest. That is one penalty. Okay, one thing. Apart from that, 1,000 rupees for each day. Okay, and maximum was 1 lakh rupees. Okay, this was the penalty for this. Okay, so बीच में हम लोग will be revising whenever we get new penalties. ठीक है, we'll just put it together. एक बार हम देखते रहेंगे. So if you go on seeing it for say 10 times, तो आपको automatically वो stick करेगा. Okay, you will be able to know कि किसका क्या है देखते देखते, क्योंकि इसको as a list याद नहीं किया जा सकता. ये सब चीज ऐसी है. और let me also tell you that too much weightage is not there in remembering these fines and all. बहुत ही कम marks allot होते, बहुत ही कम. मैक्सिमम शायद 1,000 मार्क्स का ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा 100 से जो आपको पेनल्टी पूछेगा. तो फोकस इज नॉट दैट यू शुड रिमेंबर दिस. दिस इज वन थिंग. ओके, सो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाइज हम विल सी व्हाट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ. ओके, सो इट्स अ स्टॉक इश्यू आफ्टर आईपीओ. ठीक है, फर्स्ट टाइम व्हेन अ कंपनी वांट्स टू बी पब्लिकली ट्रेडेड. ठीक है, पब्लिकली ट्रेडेड जब होना है तब जब स्टॉक इश्यू करती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट आईपीओ होने के बाद शेयर्स उसके लिस्ट हो जाते हैं, वो लिस्टेड कंपनी बन जाती है. इट बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी. ओके,
उसके बाद इट्स पॉसिबल दैट इट वांट्स टू इशू न्यू शेयर्स फॉर डाइवर्सिफाइंग इट्स एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद जो भी पब्लिक को इश्यू करेगी दैट इज कॉल्ड एफपीओ. So it can be FPO1, FPO2, FPO3, okay, right? So purpose is to raise additional capital. Now advantages is public company can issue offer for sale. So offer for sale basically क्या होता है ना कि देखिए, when you have your IPO, ठीक है, when you initial public offering जब करते हैं, ठीक है, so the company के shares goes to the promoters and others, let us say, other shareholders. Now, say promoters have 5,000 shares and others have 10,000 shares. Okay. So, जब FPO होता है तो कंपनीज को अथॉरिटी होती है कि if the promoters want to sell off their shares, ठीक है, शेयर्स अपने मार्केट में बेचना चाहते हैं, जैसे उनको इतना रिटेन नहीं करना है, ओके, दे वांट टू रिटेन ओनली 4,000 एंड वांट टू सेल ऑफ रिमेनिंग 1,000. सो इसको वो बेच सकते हैं. इसके लिए जो है प्रोस्पेक्टस नहीं बोलते हैं, इट इज कॉल्ड लेटर ऑफ ऑफर. लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू ये बेच सकते हैं, ठीक है. सो जब ये बेचते हैं तो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है, सेबी के देयर आर सम कंडीशंस व्हिच हैव टू बी फॉलोड ये करने के लिए, बट दिस इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एफपीओ, ठीक है. तो जब एफपीओ आता है तो प्रमोटर्स लोग ये लेटर ऑफ ऑफर ये भी बेच सकते हैं, प्लस कंपनी कैन इशू न्यू शेयर्स टू द पब्लिक. बोथ कैन हैपन, ठीक है. तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर फॉर सेल. यानी आपको इन शॉर्ट ये समझना है कि प्रमोटर्स अपनी शेयर बेच रहे हैं, ठीक है, दैट इज ऑफर फॉर सेल. Okay, so when promoters sell their own share, then that is by means of an offer for sale. We don't use the word prospectus for that. Okay, that's not prospectus, but it is through an offer for sale. Okay. Now FPO, that we have already discussed. When already listed company, it has been listed after IPO, correct? It makes a fresh issue of securities to the public or an offer for sale. That is when promoters are giving their shares. ठीक है, तो इसको बोलते हैं FPO technically, right? Now offer for sale is allowed only if it satisfied listing and continuous listing obligations. So what is listing and continuous listing obligations, ये आपको डिटेल में नहीं है. Again it is a part of securities law, ठीक है. तो आपको फाइनल में you have a fair part of सेबी, ठीक है, एक पूरा चैप्टर इज डेडिकेटेड टू सेबी. तो उसमें आप ये लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस वगैरह यू विल स्टडी इन डिटेल. तो यहाँ पे बस यू ओनली नीड टू नो ऑफर फॉर सेल तभी कर सकते हैं जब सेबी के कुछ रूल्स हैं. यू कैन जस्ट कंसीडर दिस एज सम रूल्स ऑफ सेबी व्हिच द कंपनी मस्ट बी फुलफिलिंग, ठीक है. वो फुलफिल कर रहा है तभी वो ऑफर फॉर सेल अलाउ करते हैं, नहीं तो नहीं करते, ठीक है. सो इट इज दैट. सो now follow on offering is often but incorrectly called as secondary offering. ठीक है, जो सेकेंडरी ये है फॉलो ऑन, ये FPO इज फॉलो ऑन, करेक्ट. और सेकेंडरी क्या होता है, जब शेयर होल्डर अपना शेयर बेचता है मार्केट में, ठीक है, स्टॉक मार्केट में. इन योर स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस होता है ना, फ्रॉम शेयर होल्डर लेवल से शेयर होल्डर लेवल, करेक्ट, ठीक है. ये आपका सेकेंडरी. और अगर प्रमोटर ने, अगर सपोज जो भी उसके जो रूल्स है वो सब फॉलो नहीं किया, लेटर ऑफर नहीं, और ऐसे ही उसने अगर बेच दिया, तो प्रमोटर टू शेयर होल्डर भी आपका जब सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा तो इट विल कम अंडर दिस इफ इट डजंट फॉलो द रूल्स, ठीक है. यहाँ पे हमने जो देखे हैं ना, ऑफर फॉर सेल उसको तभी बोलेंगे जब कंपनी फॉलोज द लिस्टिंग और कंटिन्यूअस लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस. फॉलो नहीं किया और फिर अगर वो बेच रहा है, इट विल फॉल अंडर शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर में उसको माना जाएगा उसको, ठीक है. देखिए, अगर इफ यू सी कॉन्सेप्चुअली, इफ यू सी आप उसको क्या मानते हो, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है. जैसे आप उसको FPO मानते हो या उसको सेकेंडरी ऑफरिंग मानते हो, ठीक है, ठीक है. बेसिकली यू नो क्या होता है कि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू सी
when they issue FPO to the public, they will get money. ठीक है. When the promoters are selling to others, the company does not get money. ठीक है. और secondary में भी one shareholder to another shareholder, company does not get money. इसमें कंपनी को उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है दोनों. ठीक है. कंपनी को पैसे नहीं मिलते, कंपनी को FPO में पैसे मिलते हैं. कंपनी गेट्स मनी ओनली इन FPO in that route. Which route? This route. So company is interested in this route basically. ठीक है. वही है, बस प्रमोटर्स के लिए वो है कि they just give them an option कि वो अपना शेयर्स को भी थोड़ा लिक्विडेट कर सके. ओके, बस उतना ही है, बट फाइनेंशियली कंपनी को कोई फायदा नहीं. सो दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. ठीक है. और इट इज इनकरेक्टली कॉल्ड सेकेंडरी ऑफरिंग जो बोला है ना, वो इसीलिए है. सेकेंडरी इज स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर सेकेंडरी. ठीक है. IPO FPO आर प्राइमरी. IPO and FPO both are primary. ठीक है, ये याद रखना बस. ये कुछ इसमें सब आ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव और समथिंग. IPO and FPO are always primary issue. ठीक है. इवन ये आपका ऑफर फॉर सेल जो है ना, भले ही वो प्रमोटर के पास से जा रहा है, इट इज कंसिडर्ड एज FPO अगर वो ये कंटिन्यूअस लिस्टिंग अगर फॉलो करता है. ठीक है. टेक्निकली उसको ऐसा माना जाता है. तो IPO और FPO के अंदर में जो आता है दैट इज प्राइमरी. जो सेकेंडरी स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर जाता है दैट इज सेकेंडरी ऑफरिंग. ठीक है. so just remember this. अब हम we will just go little ahead. इसमें we will just talk about dilutive and non dilutive FPO. ठीक है, याद रखेंगे जो नाम है इसका, dilutive and non dilutive. नाम ही डाइल्यूशन का क्या मतलब है कि जैसे अगर आप कोई भी लिक्विड लेते हो, ठीक है, उसको आप उसमें और पानी डाल देते हो, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटिंग. ठीक है. सो राइट एंड ठीक है, तो दैट इज बेसिक मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन. ठीक है. तब डाइल्यूटिव और नॉन डाइल्यूटिव में क्या फर्क है मैं बता रहा हूँ कि देखिए, अगर कंपनी का से नेट प्रॉफिट is 10,000. Okay. Now shares जो है that is say 2,000 shares. ठीक है. तो आपका EPS कितना आता है, कंसिडरिंग कि पूरा ही उनको दिया जा रहा है. EPS आपका आएगा नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर्स. करेक्ट. और अगर हाँ ठीक है, तो EPS आएगा ये उनका. ठीक है. अगर मैंने और 2,000 शेयर्स इश्यू कर दिए, ओके, इशूड अनदर 2,000, तब ये आपके कितने 4,000 हो जाएंगे. एग्री करते हैं? तो एग्री, दिस बिकम्स 4,000. ठीक है. ये 4,000 हो गया तो आपका EPS कम हो गया ना. क्यों? क्योंकि उतना ही प्रॉफिट अभी ज्यादा लोग शेयर कर रहे. ठीक है. तो क्या हुआ प्रॉफिट में? प्रॉफिट डाइल्यूट हो गया ना आपका, डाइल्यूट हो गया. तो इसको इस टाइप के जो FPO है जिसमें आपका मार्केट में आप नए शेयर उतारते हैं, जब मार्केट में आपका न्यू शेयर्स जाता है, उसको बोलते हैं डाइल्यूटिव FPO. ठीक है. लेकिन ये बात इसमें समझना है आपको, आज तो आपका डाइल्यूट हो रहा है, बट वो 2,000 शेयर आपने जो इश्यू किए हैं वो जब अपना काम करना चालू करेंगे, वो वाला कैपिटल, ठीक है, तो कल को आपका ये नेट प्रॉफिट माइट गो अप टू 25,000 और ये आपका 5 से 6.25 भी हो जाएगा फ्यूचर में. बट इज एन इमीडिएट डाइल्यूशन. ठीक है. आज के तारीख में डाइल्यूट होता है. ओके. बट फ्यूचर में ऑफकोर्स वो कैपिटल जब आप यूज करोगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा. तो नॉन डाइल्यूटिव में क्या क्या आ जाएगा? जब एक पर्सन है वो ऑलरेडी अ शेयर होल्डर, प्रमोटर भी है जो लेटर ऑफ ऑफर में समझिए, और अनदर शेयर होल्डर इज ऑलरेडी अ शेयर होल्डर. ठीक है. अब इसने ये शेयर इसको बेचा या इसने ये शेयर और किसी को बेचा, तो क्या कोई नया इश्यू हुआ है? इज देयर एनी न्यू इश्यू? नो. एंड इफ देयर इज नो न्यू इश्यू, देयर विल बी नो डाइल्यूशन. करेक्ट. पहले अगर हमारे 2,000 शेयर्स थे, आज भी 2,000 है,
बस एक शेयर ए के नाम था, बी में चला गया, बी का नाम था, सी में चला गया। करेक्ट। सो इसीलिए इस टाइप का जो मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं नॉन डाइल्यूटिव। ठीक है, दिस इज द तो सर ये एफपीओ कैसे हुआ था? हाँ सर ये एफपीओ कैसे हुआ सर? क्या एफपीओ कैसे हुआ? सर नॉन डाइल्यूट सर एफपीओ ही हुआ ना? हाँ, नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ ही हुआ। ठीक है, लेकिन देखिए मैं ये एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर देखिए शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर भी होता है, ठीक है, ये एफपीओ नहीं होगा, बट अगेन ये भी आपका प्रॉफिट को डाइल्यूट नहीं कर रहा है ना। तो शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर भी जब जा रहा है, ओके, देन इट इज नॉट डाइल्यूटिंग योर प्रॉफिट। वो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ प्रमोटर टू शेयर होल्डर, ये वो वाला पार्ट है जहां पे वो सेबी रूल्स फॉलो करेंगे, तब हम उसको एफपीओ मानते हैं, जो मैंने बोला ना, दिस इज दैट पार्ट। ओके। सर तो एफपीओ में हम लोग सर न्यू शेयर को मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं ना सर? नहीं, यहाँ ऊपर देखिए मैंने क्या बताया आपको, दो चीजें, ठीक है। ऑफर फॉर सेल मैंने बताया अभी आपको, करेक्ट। ऑफर फॉर सेल में क्या करते हैं? आमिर, यस सर। ऑफर फॉर सेल में क्या करते हैं? हम ऑफर कर रहे हैं सर दूसरे को कि मेरा शेयर को परचेज करे। नहीं, देखिए ऑफर फॉर सेल में जो है, ऑफर फॉर सेल उसको बोलते हैं जब प्रमोटर्स हैं आपके, ठीक है, प्रमोटर्स के पास कुछ शेयर्स है ना। अगर प्रमोटर्स, जब आपका एफपीओ होता है, जब भी कंपनी का एफपीओ निकलता है, ठीक है, देयर आर टू थिंग्स। वन जो है कंपनी इश्यूज न्यू शेयर्स, ठीक है, ये जो आप बोल रहे हैं ये होता है। नंबर टू, दे ऑल्सो गिव अपॉर्चुनिटी कि जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स सेल टू अदर शेयर होल्डर्स। अगर अब हालांकि ये जो दूसरा है ये अब डायरेक्टली नहीं जा रहा है मार्केट में, लेकिन ये दूसरे वाले में ये होता है कि अगर आपको सेबी के कुछ लिस्टिंग और कंटिन्यूस लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है, ये अगर कंपनी फुलफिल करता है, ओके, तब इसको एफपीओ माना जाता है। थियोरेटिकली दिस इज कंसिडर्ड एज एफपीओ। ओके, सो दिस बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे प्रमोटर लोग दूसरे शेयर होल्डर को अपना शेयर दे रहे हैं, और दिस इज कंसिडर्ड एज एफपीओ। और सर जब प्रमोटर सब दे रहे हैं तो इसी को ऑफर फॉर सेल कहा जाएगा? ऑफर फॉर सेल। अब ये यहाँ अगर मैं देखिए, अब मैं रेड में मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये देखिए, एफपीओ व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जब ये मेक करता है, ठीक है, ऑफर फॉर सेल फॉर फ्रेश इश्यू, ये हो गया नंबर वन, ये वाला, और एन ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट, ये दो अगर करते हैं, ठीक है, तो इसको ऑफर फॉर सेल बोला जाता है। ये एफपीओ के अंदर आता है। ऑफर फॉर सेल नहीं, ऑफर फॉर सेल तो ये वाला है सिर्फ, तो ये एफपीओ के अंदर ये दोनों आते हैं बेसिकली। ठीक है, समझिए, तो ये भी एफपीओ है यस आपका, सर। ये भी एफपीओ है आपका। ओके, लेकिन जब जब स्टॉक मार्केट पे जो शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर होता है, वो आपका एफपीओ नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने वो एग्जांपल इसलिए लिया था कि आपको डाइल्यूशन और नॉन डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, अब जो प्रमोटर टू शेयर होल्डर जो आ रहा है यहाँ पे, इसमें डाइल्यूशन नहीं हो रहा है ना। तो मेरे पास जो शेयर्स थे, वट एवर शेयर्स आई हैव, ठीक है, वही चीज दूसरे को जा रही है, करेक्ट। इसमें देयर इज नो डाइल्यूशन, बट व्हेन कंपनी डायरेक्टली इश्यूज टू द मार्केट देयर इज डाइल्यूशन। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड आमिर? सर यस सर। नहीं, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सर क्योंकि ये आप लोग के लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट। यस, यस शिवम। sir, this means that FPO, when the company offers to sell, Yeah. that means the promoter can only sell it to the shareholders, or it can be to the initial public also. There is a particular procedure prescribed by SEBI for that. Okay, so they will have to follow that procedure and issue only as per that procedure.
So normally, no, it is issued into the stock market. It is issued into the stock market. But there are detailed guidelines for that. Okay, so that you will read in final. It's a comprehensive guidelines that they have to follow that, and they have to issue only like that. If they do not follow it, then it will not be considered as FPO. Okay, sir. That means Sir, if followed, when then promoters they sell can to issue the shareholder, then it is called offer for sale. एक करके. हाँ, yes, शिवम बोलिए. Sir, this means if the procedure is followed properly, they Yeah. can sell the share to the stock market and it will be also considered as FPO. Correct. So Okay. flow wise, if you see technically, it looks like secondary, correct? Because they have already purchased from promoters, got the Yes, sir. shares. That's Now what they are we giving to can- someone. So it looks like technically it looks like secondary, correct? So but it is considered as primary. जैसे हमारे डीमिंग प्रोविजंस होते हैं ना, जस्ट कंसिडर इट लाइक अ डीमिंग प्रोविजन. हाँ आमिर, आप बोलिए. Sir, when promoters sell its share to shareholder, then it is called offer for sale only. करेक्ट, देन इट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल. ठीक है, देन वही इसकी इसमें ये नहीं है, ऐसा नहीं है इसमें आमिर की कि प्रमोटर जब भी बेचेगा शेयर होल्डर को, इट विल बी ऑफर फॉर सेल. ठीक है, प्रमोटर बेचेगा जब एफपीओ आएगा, जब आपका एफपीओ निकलेगा, ठीक है, तब कंपनी विल इश्यू शेयर्स, ठीक है, डायरेक्टली, और प्रमोटर्स को भी तभी ऑप्शन रहेगा. प्रमोटर्स विल हैव ऑप्शन. ठीक है, तभी इट विल बी कॉल्ड एज एफपीओ. ऐसे नहीं है कि अगर सपोज जब एफपीओ नहीं चल रहा है, कभी कंपनी ने अपने प्रमोटर्स ने अपना कोई शेयर प्राइवेट बेसिस में उसने बेच दिया है किसी को, देन इट विल नॉट बी ऑफर फॉर सेल. तो ऑफर फॉर सेल और एफपीओ बनने के लिए काफी कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स बने हुए हैं. वो फॉलो होगा तभी वो करेंगे, तभी वो कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा. नहीं तो उसको नॉर्मल शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर ट्रांसफर मानेंगे. ओके, क्लियर? ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? Yes, sir. बस मतलब इतना आपको समझना है. बट ड्यूरिंग एन एफपीओ, when company is issuing shares and promoters are also giving, then both these will be considered as FPO. Okay, so you will have cases जब promoters भी अपने शेयर बेचेंगे और उसको सेकेंडरी माना जाएगा. ऐसे भी केसेस रहेंगे. तो तब रहेगा जब कंपनी का कोई ये नहीं, ये अपने प्राइवेट, अपने पर्सनल कैपेसिटी में अगर अपने शेयर्स बेच रहे हैं वो कल को, तो दैट विल बी शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर. ओके, अच्छा, तो यहाँ पे बस एक एग्जांपल बस ये है दिए हैं. गूगल का आईपीओ आया था जब, ठीक है, तो काफी एक फेमस आईपीओ आया था गूगल का. ठीक है, तो उसमें उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साथ में लाए थे. ठीक है, तो ये सब ऑल दिस टर्म्स, जैसे मैं आपको एक चीज मैं बोलूं, तो जब प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेचते हैं, प्रमोटर्स आर सेलिंग, ठीक है, वेदर इट इज कॉल्ड आईपीओ और वेदर इट इज कॉल्ड एफपीओ और वेदर इट इज सेकेंडरी, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता टेक्निकली. ठीक है, टेक्निकली कुछ फर्क नहीं पड़ता. तीनों केस में होता ये है कि जो कंपनी के कंट्रोल्ड शेयर्स हैं, व्हाट हैपेंस इज द कंट्रोल्ड शेयर्स ऑफ द कंपनी इट गोज आउट. ठीक है, तो फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू इसको अच्छे से नहीं देखा जाता है कि कंपनी कुछ शेयर्स अपने कंट्रोल में रखती है हमेशा, दैट सो दैट द कॉम्पिटिटर्स डू नॉट एक्वायर मेजॉरिटी ऑफ देयर शेयर्स. ठीक है, सो दैट इज व्हाई कि प्रमोटर्स कैसे भी बेचे, टेक्निकली थियोरेटिकल बस ये है इसका कि ये बेचे तो आईपीओ एफपीओ माना जाएगा, नहीं तो सेकेंडरी माना जाएगा. फर्क क्या पड़ता है? फर्क कुछ नहीं पड़ता. ठीक है, तो चलिए, हमने डिस्टिंक्शन बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ, एक छोटा सा चीज है, आप ये देख लेंगे, आपको यू विल गेट इजीली 4 मार्क्स, 2 पॉइंट्स दोनों का दे देंगे. ये है इनिशियल पब्लिक. पहले तो आप
दोनों के नाम लिख देना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। देन दिस इज इनिशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट बाय द पब्लिक, ऐसा दिस इज सब्सिक्वेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये टर्म्स लिखना है, ओके। राइट दिस टर्म्स, इनिशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड सब्सिक्वेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट। देन issued when the company first becomes publicly traded. So IPO is initial ना, इससे पहले कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में उसके शेयर्स नहीं होते। जब IPO रिलीज करती है तब फर्स्ट टाइम उसके शेयर्स लिस्ट होते हैं, राइट। So first time its shares gets listed during IPO. Similarly for FPO, it is public issue of shares of an already listed, so already it has listed shares, right? तो ये होते हैं। तो और जो भी लिस्ट होते हैं ना, वो पर्टिकुलर बैच ऑफ सिक्योरिटीज लिस्ट होते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, लेकिन हर जो बैच है, हर नया नया जो सिक्योरिटी है, वो अलग अलग लिस्ट होता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि जैसे आपका आईपीओ में इतना लिस्ट हो गया तो बाकी भी अपने आप लिस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं, उसको भी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ओके। ऑल दिस लिस्टिंग इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय सेबी। तो सभी रेगुलेशंस डिटेल में आपको रहेंगे फाइनल, ठीक है। तो तब अभी हमने ये देखा कि वन मोर कॉन्सेप्ट नाउ, डाइल्यूटिव एफपीओ, ठीक है। ये तो जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डाइल्यूटिव मींस यू आर सेलिंग मोर शेयर्स इन द कंपनी, करेक्ट, तभी डाइल्यूशन हो रहा है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है आफ्टर दिस बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्रीजेस द शेयर ऑफ द फ्लोट। अब फ्लोट क्या है ये कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा आपको, व्हाट इज फ्लोट, ठीक है। So this is your authorized capital, ये जो बड़ा ब्लॉक है, this is your authorized capital, okay, and this is ये जो ग्रे वाला फुल ब्लॉक है ना, ये पूरा स्क्वायर जो है, this is your issued, subscribed and paid up capital। सपोज मान लो कि तीनों सेम है, ठीक है। अब ये जितना कैपिटल इश्यूड है, whatever capital is issued, the whole thing doesn't trade in the share capital, ठीक है। Majority of the shares कंपनी अपने पास रखती है, अपने प्रमोटर्स, अपने खास लोगों के पास, ताकि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शुड नॉट गो टू अदर्स, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ इट, जो ग्रे पार्ट यहाँ पे जो भी है ना, ये सब कंपनी अपने कंट्रोल में रखती है, ये इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल का। और इसका एक ही पार्ट है जो कंपनी बाहर निकालती है, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट जो है स्टॉक मार्केट में डालती है, और वो है, उसको बोलते हैं फ्लोट। व्हेनेवर आप लोग CNBC है सब न्यूज़ कभी सुनते होंगे, इसमें फ्लोट वर्ड सुनते होंगे काफी, फ्लोट इतना है, फ्लोट करके। तो फ्लोट कुछ नहीं है, आपका वो पेड अप कैपिटल है जो मार्केट में तैर रहा है, इसीलिए फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। ये समझ गए आपको फ्लोट कॉन्सेप्ट, यू अंडरस्टूड? Okay, so now if you see this diagram, float में, now this is the total share capital, ठीक है। ये जो लाइन है, this line is your total share capital. In this yellow में बोल रहा है shares which are available for trading. Okay, this will become your float. Yellow will be your float, and this green one is not available for trading. तो ये green का जो पार्ट रहता है नॉर्मली, एटलीस्ट यू नो इट्स अ बिग पार्ट, 70 to 80% एटलीस्ट ग्रीन में आता है, बहुत कम ही ट्रेड होता है एक्चुअली, बिकॉज़ द कंपनीज हैव टू बी सेफ, राइट। तो जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस होता है आपका, देयर इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस में, जैसे मैंने बोला इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें जो आपको लिस्टेड कंपनी रहना है तो सेबी प्रिस्क्राइब्स अ मिनिमम परसेंटेज कि आपको 25% शेयर तो भी आपको मार्केट में फ्लोट कराना है, ठीक है। यहाँ जैसे जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको 10%, जैसे ये बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है सब। तो सभी बोलती है कि कम से कम इतना तो भी आप डालो, तभी आपको हम लिस्टेड बनाएंगे, तो मिनिमम रहता है। तो दे ऑलवेज कीप दैट मच ओनली, जितना उनको चाहिए टू बिकम अ लिस्टेड कंपनी, दे ओनली फ्लोट दैट मच ऑफ शेयर्स, ओके। ये है, तो आपको बस इतना ही मालूम होना है कि फ्लोट क्या है,
अब ये सब तो यू नो ऑलरेडी, जब नया शेयर इश्यू होता है तो एडिशनल कैश क्या करेगा, डेट है तो उसको निकाल सकता है, एक्सपेंड करेगा कंपनी का बिजनेस, राइट। दे विल यूज द एडिशनल कैश फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर से वाइपिंग आउट द डेट और expanding company's business. Okay, dilutive FPO is dilution of earnings of each share. ठीक है, it increases the outstanding shares in the market. Okay, correct, agreed. और इसके दो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस हैं। पॉजिटिव साइन है बेनिफिशियल फॉर शेयर होल्डर्स कंपनी। अब बेनिफिशियल क्यों बोल रहे हैं ये तो डाइल्यूशन हो गया तो उनका तो शेयर कैप ईपीएस कम हो जाएगा ना, ईपीएस विल रिड्यूस, तो बेनिफिशियल कैसे हुआ? How is this beneficial? Because their EPS is going to reduce. सर लॉन्ग टर्म में तो ये बेनिफिट देगी ना, Correct. EPS तो सब्सिक्वेंटली बढ़ता रहेगा। Correct. So it is from a long term point of view ये देखा जाता है। It is not for अगर मैं ऐसा शेयर होल्डर हूं जो मुझे अभी 1-2 साल शेयर रखना है, बेच के मैं निकल जाऊंगा, तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि करंटली मेरा डिविडेंड कम हो जाएगा उससे। बट जो लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं, जैसे आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट सुने होंगे, ठीक है, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए दिस इज अ पॉजिटिव साइन। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर एफपीओ एंड डाइल्यूशन। तो मुझे वो प्रॉब्लम आपको रीड करना है, बट थोड़ा सा मैं देखता हूँ, ठीक है। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। एफपीओ के थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ एफपीओ होता है, बट थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते हैं। ओके, होता ब्रॉडली द फ्लो इज द सेम। ओके, दिस वन एग्जांपल ऑफ एफपीओ कॉल्ड एज एटीएम ऑफरिंग बोलते हैं, एट द मार्केट ऑफरिंग। तो ये ऐसा एफपीओ है, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, जब न्यू शेयर्स इश्यू करते हैं तो वो जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो न्यू शेयर को थोड़ा करके सेकेंडरी मार्केट में इश्यू कर सकते हैं। दे हैव दैट अथॉरिटी इन एटीएम मार्केट, एटीएम ऑफरिंग, ठीक है। तो उसमें फायदा ये होता है कि वो देखेंगे आज स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है, जिस दिन ज्यादा है उस दिन वो बेच सकते हैं एज नीडेड बेसिस। तो उनको एक साथ नहीं निकालना, वो रखेंगे, मार्केट जब जब अप होते जाएगा दे विल सेल शेयर। सो इसको स्टेप बाय स्टेप उनको सेल करने देता है ये वाला जो प्रोसीजर एटीएम ऑफरिंग, दैट इज एटीएम ऑफरिंग। एंड वो ये डोंट ऑफर शेयर सिर्फ अनसेटिस्फाइड, किसी दिन आपको प्राइस कम लग रहा है उस दिन मत बेचो, आप दूसरे दिन शेयर्स निकालो। दे हैव गॉट दैट पर्टिकुलर ये। तो ये कुछ जहां ये एटीएम ऑफरिंग मिलता है, दैट द लिस्टेड कंपनीज कैन डू दिस, ठीक है। तो बेसिकली इफ यू सी द फ्लो, क्या कर क्या रहे हैं, ये तो एफपीओ ही कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में बेच रहे हैं अपने शेयर्स, ठीक है। लेकिन वही है इसमें कि जो है उनको इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट बेचने का मौका दे रहा है बस, ठीक है। जब मार्केट बढ़ता है तब बेच सकते हैं। दिस इज वन टाइप, ठीक है। बस याद रखना, इसमें कोई शॉर्ट नोट या ऐसा कुछ आ सकता है एटीएम ऑफरिंग। तो जस्ट 3-4 पॉइंट आप लिख दोगे, उनको ये भी पता चल गया कि आपको मालूम है एटीएम क्या है, ठीक है। तो यू विल गेट द मार्क्स फॉर दिस, ठीक है। इसमें ये दो एडवांटेजेस लिखना जरूरी है। दो क्या है, एक ही पॉइंट, रेज कैपिटल ऑन एज नीडेड बेसिस। Then second point is don't offer if unsatisfied. So it's the same as the first point, correct? अलग अलग ढंग से लिखा गया है और कुछ नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कॉन्सेप्ट वाइज याद रखिए। ये सब चीजें नॉर्मली बहुत स्टूडेंट्स को सब मालूम नहीं रहता है, तो ये सब क्वेश्चंस लिए बहुत आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को फ्लोट मालूम नहीं रहता है, स्टूडेंट्स को एटीएम मालूम नहीं रहता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच आपको ध्यान रखना चाहिए, है कुछ नहीं इसमें कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। तो एक और चीज, हाँ, नॉन डाइल्यूटिव जो एफपीओ है इसमें कंपनी का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। नो न्यू शेयर्स आर इश्यूड, डाइल्यूशन का तो क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। और कभी कभी बस वही प्राइवेटली हेल्ड शेयर्स जो है वो लोग निकालते हैं कि चलो ठीक है, नहीं अपने कंपनी का नाम थोड़ा बढ़ना चाहिए, चलो और दूर दूर लोगों के पास जाए शेयर्स, उसके लिए थोड़ा सा वो स्ट्रेटेजिकली वो लोग निकालते हैं बाहर, ठीक है। तभी वो एफपीओ के थ्रू निकलता है, तभी प्रमोटर्स लोग भी देते हैं ना, इट्स बेस्ड ऑन कंपनी पॉलिसी एफपीओ जो है, ठीक है।
तो ये प्रमोटर अपने मन से नहीं दे रहा है, ठीक है, कंपनी की पॉलिसी के तहत दे रहा है. Okay, he is giving as per the company policy. So, right, so this is FPO that we have already discussed. यहाँ पे no benefit for the shareholders in the company. Now, shareholders might get some small time profit. अगर उनको market में high चल रहा है, so they will get some profit. Long term के हिसाब से इसमें कुछ there is no new investment, so no benefit. ठीक है, it can lead to a commanding position for outside institutions. जो आपके पास शेयर्स आपके कंट्रोल में वो आप निकाल रहे हो, तो गलत आदमी खरीद सकता है उसको. ओके, रॉन्ग पर्सन कैन बाय योर शेयर्स हु इज लुकिंग फॉर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. ठीक है, दैट इज वन प्रॉब्लम. ओके, सो दिस इज अबाउट नॉन डाइल्यूटिव. ठीक है, ये मेन पॉइंट है. कुछ कुछ आप जैसे याद रखें तो कुछ पूछे तो यू कैन राइट. अभी एक चीज है, दोनों आईपीओ एफपीओ में अंडर राइटर्स जो शेयर बेचते हैं, दे यूज ग्रीन शू ऑप्शन. ग्रीन शू ओवरलॉटमेंट ऑप्शन, बस ये एक ही वर्ड यहाँ पे है आपके स्टडी मटेरियल में. तो इसमें आपको बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ग्रीन शू ऑप्शन में बस होता ये है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको मालूम रहे. ठीक है, बट तो ग्रीन शू में होता ये है कि जब नई कंपनी अपना स्टॉक इश्यू करती है शेयर्स, ठीक है, तो रेट बहुत बढ़ जाता है इसका, क्योंकि डिमांड इज वेरी हाई, सब लेना चाहते हैं उसको. ठीक है, डिमांड इज वेरी हाई. तो क्या करते हैं कि प्रमोटर्स के कुछ शेयर होते हैं, ठीक है, वो जो है ही लेंड्स इट, यानी वो गिर देता है. एक सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग करके होता है. ठीक है, उसके थ्रू ये अंडरराइटर को कुछ अपने शेयर्स लेंड करता है. तो अंडरराइटर क्या करता है, वो वाले शेयर्स को जब प्राइस बहुत बढ़ने लगते हैं ऊपर, जितना उसका अंडरलाइंग वैल्यू उससे ज्यादा बढ़ने लग जाता है, कभी डिमांड बहुत रहता है, तो प्रमोटर्स जो है ये शेयर्स वो अगर मार्केट में निकाल देते हैं थोड़े, तो वो कंट्रोल हो जाता है. फिर फाइनली जब वो प्राइस कंट्रोल होता है, उसको बेच के फिर से वापस दे देते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन शू ऑप्शन. इसके बारे में होना तो हम थोड़ा और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है ग्रीन शू. ठीक है, सो आई एम क्लोजिंग इट नाउ. वो वाला प्रॉब्लम हम कल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आई डिड नॉट हैव इनफ टाइम. तो ओके, देन विल मीट टुमारो. ना कोई क्वेश्चंस है तो कर लेंगे.